Good morning, class 10. Today we'll be doing the explanation of nationalism in India. This will be our third class on it. The objective is because our students should be aware of the hardship that people had gone through during the struggle for freedom. I feel that students should understand the drawbacks of foreign rule and they should have feeling of nationalism. And I hope I have made it very much clear what nationalism means. So, growth of nationalism in India has started or it is connected to the anti-colonial movement, okay, when Britishers were ruling us. People began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism, राइट जब ब्रिटिशर्स हम पे जुल्म कर रहे थे तब लोगों को लगा कि वो यूनाइट होके ब्रिटिशर्स के साथ फाइट कर सकते हैं. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond and tied many groups together. Okay, so there were many groups that were formed and who were ready to fight against the injustice that were taking place. The Congress under Mahatma Gandhi tried to forge this group together in one movement. अब क्या हुआ? जो लोग थोड़े थोड़े अलग अलग फाइट कर रहे थे, महात्मा गांधी ने उन्हें यूनाइट करके इकट्ठा फाइट करने के लिए तैयार किया. What was the effect of the First World War? किसी भी वॉर का इफेक्ट क्या होता है? That it create a new economic and political situation. सबसे पहले किसी भी देश का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है. सारे कमोडिटीज के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया. और उसी टाइम पे क्या हुआ कि क्रॉप्स भी फेल हो गए. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड साथ में ही एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा नाम का एपिडेमिक फैला जिससे कि अबाउट 12 to 13 million people died. This was the casualties during the World War I. This is the graveyard, the magical man. Okay, so Mahatma Gandhi returned to India in January 1950. His method was Satyagraha. Now in 1916 he has travelled to Champaran to inspire peasants to struggle against oppressive plantation system. Okay, he also went to Kheda district and he also went to Ahmedabad. Now this Royal Act was there. When Gandhiji was calling for Hartal on 6th April 1919, he was organizing rallies also. Workers went on strike in railway workshop. Everything was closed down. Now British administration clamped on nationalists. They think it is not right. Okay. So what they did that the local leaders, they picked local leaders from Amritsar. Okay. Now Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. उन्हें रोक दिया गया कि अब आप दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हो. On 10th April 1919, police fired on peaceful procession, martial law was imposed and General Dyer took command. Okay, 10th April 1919 में क्या हुआ? पुलिस ने जो भी ये पीसफुल प्रोसेशन चल रहे थे उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया. मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया और जनरल डायर जो थे अब उन्होंने कमांड ले ली थी. General Dyer, he is also known as Butcher of Amritsar. Jallianwala Bagh massacre. You can see how thousands of people are died. Now Jallianwala Bagh massacre. Okay, it's very infamous. Now infamous is something जो अपनी किसी बुरी वजह के लिए फेमस हुआ. Okay, it is not famous for a good thing. जलियांवाला मैसेकर जो हुआ था वो एक बैड थिंग के लिए जाना जाता है. तो क्या हुआ उस दिन जो वायलेंस था जलियांवाला बाग के बाद वो स्टार्ट हो गया. गांधी जी ने अपने सारे मूवमेंट को ऑफ कर दिया.
रोक दिया। जो भी उनके छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे वो उन्होंने सबको रोक दिया, क्योंकि लोग बेकाबू हो गए थे जलियांवाला बाग के बाद में ना, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और गांधी जी को लगा कि अब हमें एक नया मूवमेंट चाहिए ताकि हम और जोर शोर से ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला कर सके। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था कि 13 अप्रैल को लोग वहाँ पे लोहरी का फेस्टिवल मनाने के लिए गए थे। ओके, वो एक ग्राउंड है जहाँ की एंट्रेंस सिर्फ एक ही है। बट जनरल डायर को लगा कि लोग वहाँ पर अपना नेक्स्ट मूवमेंट प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उस अपनी आर्मी को लेकर के वो वहाँ पर गए, सोल्जर्स को लेकर के, और जो एक ही एंट्रेंस था उन्होंने उसे वहाँ से ब्लॉक कर दिया। और बिना जाने सोचे समझे कुछ भी मिला, मतलब कि पूछे या जाने मिला, उन्होंने ऑर्डर दे दिया शूट आउट का, और बहुत सारे लोग बोले वहाँ पे अपनी जान गंवा दी। Then at the Calcutta session of the Congress in September 1920, he convinced other leaders non-cooperation. उन्होंने गांधी जी ने all leaders को भी अपने साथ पे इकट्ठा कर लिया। Now this non-cooperation movement जो start हुआ था, उसमें गांधी जी has said कि Britishers are able to rule us because we are letting them to rule. If we will not allow them, then they will not be able to rule us. He was very much right, है ना। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे किया, जो भी लोगों को टाइटल्स दिए गए थे वो उन्होंने उसे सरेंडर कर दिया। पीपल हैव बॉयकॉटेड देयर सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड, एवरीथिंग वाज नॉन boycotted. Okay, in summers of 1920, Gandhi ji and Shaukat Ali tortured extensively, mobilizing popular support for the movement. उन्होंने extensively mobilizing popular support for the movement. अब वो और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लग गए। Between September to December, intense tussle, बहुत सारा उठाव चढ़ाव था कांग्रेस के अंदर कि हमें कॉपरेशन करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए, या इस तरीके से हमें उनको उनके अगेंस्ट जाना चाहिए। तो विद इन द कांग्रेस बहुत सारी बातें थी जो चल रही थी। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बेसिकली मिडिल क्लास लोगों ने पार्टिसिपेट किया सिटीज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ दिया। गवर्नमेंट स्कूल उस टाइम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। हेड मास्टर्स और टीचर्स ने भी रिजाइन कर दिया। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस दे दी। जो काउंसिल्स ऑफ इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड एक्सेप्ट मद्रास। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसीज को छोड़ के बाकी तीनों प्रेसिडेंसी पे अपना जो इलेक्शन था वो बॉयकॉट कर दिया गया। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स पे चोरी हो गई, वहाँ से वो सामान ले जाते थे। फॉरेन क्लोथ्स को उन्होंने इकट्ठा करके बर्न करना शुरू कर दिया पब्लिक प्लेसेस पे। Now this impact of NCM we'll do in next class. If you have any doubt, I'll be available in doubt session. You may ask your doubt. Till then, take care, be safe.